the mark distribution in the finals? Well, officially as a TA, what I know, there is no mark distribution as such, something like that. So on official basis, Like there is nothing. But what we have like the observed, general trend? that's what I'm telling. What I have observed in general trend is whatever you had in your quiz two, which is basically your what do I say, numericals mostly related to multiple linear regression, logistic regression, and the LPP part. That is the most weightage carrying area. So that you need to be very sure of because these things will be causing you trouble in the sense they are the one which come more and more. So if you open up any PYQs, these would be there. So you need to be very cautious of these things. Solve the question. I leave and check the recording. Harsh, I'm sorry if you think just by looking into the. I mean, I'll be very honest. These type of questions are already solved in TA session. There is nothing new to be honest here. What we will be doing, I'll be just doing a quick recap for all the important things. So all the questions are already solved in all the TA session. Most of the PYQs, all the tricks and all the concepts which are covered, are already solved. So if you have not yet watched all the TA sessions, I would say please watch them because if you're not going to these until unless you are following these sessions, you won't be able to score a good marks. I can give you it written. This is my fourth term as a TA. I have noticed this thing again and again. So if you think you will just watch some recording from some YouTube or somewhere, some people solving the past paper, you won't be able to grasp the concept. Ideally, if you get some similar question, maybe yes, then you can with different values, then you can go ahead. But the moment they start changing things, you will be in trouble. They start changing wording, they start changing the equations and all that stuff. You will be not able to do the thing. So that is what I wanted to convey. That please do not think just by going through the recording, I will be just telling you how to solve certain type of question. No, main focus is making your base strong. So when you see the questions, you do not panic. So again, I will share this OneNote notebook, and I hope I have shared this recording thing. So URL, you can click on the URL. You will find two pages. One is for recording. So this page is for all the TA sessions which me and Shabalini have done. This is for all the TA session as well as the PDFs for question which we have used. This is having your PYQs and your correction post because most of the PYQs you will see have some wrong answers, especially the one before 2003 or 2004 January term. There were questions which were having issues. So then that will Sorry, cause did you problem. mention 2003? Yes. How come 2003? Sorry, 2023. Oh, yes, correct. Mm. Thanks. So before 2023 or even in 2024 year also, they had certain questions which were causing trouble. So that is something you need to know that all the PDFs which you are seeing, Ace grade and all that stuff, uh, answer may not be correct, and you should not use that excuse to crop the question and paste in ChatGPT and ask it to justify your answer. That will not help you. You will eventually end up having some wrong concept in your mind. So please do not do that. You can open the second link. You will have something like this. I am sharing this. Give me a second. I hope this is visible to you. Yeah, so you can see all the corrections we have combined. You have PYQs here. The above link, past year question paper, all subjects in this. Open the year, whatever you are going to solve, and then open the corresponding correction so that you can see what were the corrections. You also have short notes. You also have that linear regression wala video Excel output thing. So please, if you follow one link, either the Discourse pin link, it is also having everything, or you are going to follow this my GitHub link, which I have shared as a website. So either of these, they all are having the same content. Please, if you want some good marks, I have seen people till now in quiz 2 they failed miserably, in quiz 1 also they just passed by something like that, and some are even not able to meet the passing criteria for quiz, which is basically 35%. So that is only because you all try to mug up solutions. That is not going to help here. Please, I'm very clear. If you feel that can help you, then I'm sorry, it won't be able to help you. So
what I wanted to go ahead is, if anyone is having any doubt, exact doubt, then I can go ahead with that. Like Harsh has posted this question here. Uh, okay, this is already solved. Harsh, this is already solved. So you need to refer the interim revision session, which will be in the document. You can not able to access the page. You should be able to. It's a public website. It's not something IITM related only. So yeah, uh, click on it, refresh the thing. You will be able to access that thing, which is pending. What I wanted to convey, the question which Harsh has sent is this one, which is available in your end term revision session. We have solved this question, BA coordinators, 200 student, 100 male, 100 female. So can you tell me which week is this coming from? Anyone? Which concept or which week is it this question coming from? At least tell me the week It or should be question. from 3 or 4, or the degree of Correct. freedom as And shown. okay, tell me the concept involved in this one. What do we call this Chi-square. kind of chi-square? What chi-square? You have two. Uh, what do you say? That test of independence, I guess that. Very good. Correct. Correct. So let me paste the question here, and I will give a brief intro. I'm not going to solve it because this is already solved. I will go back to the theory part. This one. So if you see this question, it says, there are male and female, then you have certain thing here, like 1, 2, 3, 4, 5. All you had to do was, they asked, I think, what is the exact question? The question says, what is for hypothesis testing? Whether the data is distributed normally, how many count of degrees of freedom is present? So first of all, I think there is some information missing in the sense, uh, is it same provided 100 male were approved per student? As far as I remember, there were two questions. First one said like this. I hope my OneNote is visible. So they're asking for degree of freedom. That too, they are saying any distribution is passing. So that part of question is not test of independence. That is goodness of it. Whenever we are dealing with any question which says is the data following any distribution, any type of distribution, then we are using goodness of it chi-square test. And when we are checking if two things are independent, like here, level and male and female, like gender. So you have gender versus level. If you are doing between two categorical variables and testing if they are independent, then it is test of independence. If you are going with any numerical data, which is saying are they, following any distribution, then that is goodness of fit. Again, remember a few things. Your chi-square formula is same, which is basically observed minus expected whole square by expected, and you sum for all the things. This formula is same for all. But in goodness of it, one thing which people confuse is degree of freedom. Can anyone tell me what is formula for degree of freedom in goodness of it? n minus p minus 1. And what is that n and p? N is the number of rows and p is the number of parameters to be Okay, estimated. correct. So this part is number of parameters to be estimated. So in few questions, like it was the question which he has exactly pasted. We did this in n-term division, I think, and so exact solution is already available. Okay, So sir. the question is reading, for hypothesis testing, focusing on whether data is distributed normally, how many count of degree of freedom is present. So if there is no thing given, like, then how many parameters will be estimated here? Normal distribution की बात हो रही है, and it Two is something like parameters. this. Two Correct. parameters. Mean and And Two what are those two parameters: parameters? mean and variance. Correct. Mu and sigma square, these two things. But let's say you will see this phrase a lot in your exams that bins divide probability space or something like this into equal areas. So please remember this term. Whenever you see equal areas, that means you do not
estimate regardless कोई भी आपका distribution हो, you are not doing any estimation. So this p is not number of parameters, p is number of parameters which you are estimating from the sample, और जो data आपको question में मिलता है उसको हम sample कहते हैं. तो उसमें से क्या आप estimate कर रहे हो. So that's the thing. So यहाँ पे अगर हम दोनों estimate, क्योंकि यहाँ पे question में exactly नहीं दिया हुआ था कुछ भी, so we would have been estimating both mu and sigma square. उस केस में हमारा p जो है 2 हो जाता, n हमारा 5 का 5 रहता, so it would have been 5 minus 2 minus 1 which is 3. But let's say अगर आपको ये वाला situation दे रखा है कि bins divide solution space in equal area, then उस केस में आपका p 0 हो जाता, तो ये हो जाता 5 minus 0 minus 1 equal to 4. So ये एक सेकंड 5 सॉरी ये 2 हो जाता था. सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. लाइक अगर आपको ये टर्म कहीं पे लिखा मिल रहा है, bins divide solution space into equal areas, then you should be cautious because Sir, this kind of but the previous question of this same question, मतलब ये question 8 का जो comprehension का yes children question, it was saying that it is dividing into equal areas and the answer here is given as 2. so that So is this what I is have where, said. That is what I have said. Have you checked in the correction post? yeah, I did check, but I was unable to find it. I shared those links. That is why, like, these links have been shared from the very No, I beginning. did check it previously as well, Mhm. but I was But unable it to is from the find the BA. exact paper. Sorry. I was unable to find the exact paper. December paper is okay, but this was, I guess I took it from uh, Mhm. January 2024 or something like that. So January 2024 is also available. Every term, that is what I'm saying. Every term has been collated there. Like, give me a second. I'll show you here. You have this one. So you have all the terms here. Jan 2024 end term is here. Quiz 1, quiz 2, everything is in the website, even on the discourse link as well. So if you are going to this official discourse link, you will have everything there as well. There is no, I mean, 2023 onwards, we have done everything. And if you do, let's say 3 terms paper, last 3 terms paper, that is also enough. Like you do not need to do 6 5 5 6 terms के पीछे का, that is not needed. I mean, obviously Yeah. कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट 3 टर्म से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. लाइक यू डू नॉट नीड टू डू ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, डू क्वालिटी क्वेश्चन. And coming to the recording, we have done all the things there. So if you check the recordings which we have done, I did most attend of the the AT session. most of the questions would be here. That end term division, you will find that question done. So I don't. I think like there would be a reason like you won't be able to find. So just go through it again, Yeah. and that's the only thing which I wanted to highlight it in this one. So you'll have this kind of thing. Okay. Sir. Also correction, that is why I'm saying corrections please उसको आप लोग रेफर करते रहना, because अगर आप corrections नहीं रेफर करोगे then it is going to, I mean it's bound to happen that आप कोई पुराना आंसर सोच रहे होगे कि इसका आंसर ये क्यों नहीं आ रहा है. So that is what is very necessary for you to do. So let me And sir, open this. one more question. Mhm. जो last term paper 2024 December, Okay, there was a light bulb question. that was a sorry. Light bulb, 2 factories were there, and there were some light bulb. 2 light bulbs were taken at random. Given the first one is defective, find the second one is also defective. Okay, that's also. I think you all do not search on Discourse. It is solved on Discourse. No, that was Everything. solved. I get it, Uh-huh. but Mhm. I was unable to understand the last part of it. If you have exact question, then you can share it. 20 Give me a sec. in the Huh. corrections paper, only it was there. The first correction was there itself. Give me a second. Let me first cover some theory. Then we will come back because I mean we are already done with 20 minutes. So have your all people here, whatever doubts you are having, please keep posting your doubts in the chat with some question, whatever exact PDF link, so that we can directly open that thing and then go ahead. So this was one thing you should remember. First is this one: bins divide solution space in equal area and all that stuff.
Then in test of independence, always remember it is good. Sorry, your degree of freedom would be row minus 1 into column minus 1. And you can understand row and column, whatever you want to do, it would be always written. Like there was a question in January 2024, or even here also, if you do, they will say you want to check if there is a dependence, or you are going to test independence between जेंडर ऑफ स्टूडेंट एंड डिफिकल्टी. तो जहां पे भी इंडिपेंडेंस वर्ड आएगा यू शुड बट ऑब्वियसली नो कि आपको एक कंटिजेंसी टेबल जैसा कुछ बनाना होगा एंड देन यू हैव टू प्रोसीड. सो इस चीज में जब आप बनाओगे यू शुड नो दैट this one, if you proceed with your what do I say, goodness of it, you need to go with the what is expected frequency goodness of it, sorry, test of independence, expected frequency. Guys, expected frequency formula. Hello, am I audible? Hello. Is it the row total by the total? Row total Somewhere into column total by total. correct. Row total into column total by grand total. So in this kind of situation, when they give you, so you see row total would be 15 plus 30. It would be like 45. So you do this here and here. You do this here and here, like row total. This is your, sorry, this is your column total. This was row total. Then you will add either all of these or add these things. You will get your grand total, everything, which would be 200, because they have already told you 200 students you are doing. And ये सारे मेल है तो ये आपका 100 हो जाएगा. This is also 100. You just need to calculate this thing, which is your what do I say, row total. So column total you will know 100 100 because they have told you 100 male 100 female. So अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं रीड करोगे, अगेन आप अननेसेसरी कैलकुलेशन करते रहोगे. सो प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. लाइक यहाँ पे दिख जाएगा 100 एंड ये 200. यहाँ से आपको आपका वो मिल जाएगा रो टोटल. सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे. अगेन आप ये वाला फॉर्मूला वापस से यूज करोगे. chi square is equals to observed minus expected का whole square by expected. एंड इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना, रो -1 into column -1. दिस थिंग टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज क्लियरली इजी. जो प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को आती है गुडनेस ऑफ फिट में ही आती है, और स्पेशली दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट. सो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट ध्यान रखना. एक चीज गांठ बांध लेना अपने में कि आपको अगर कोई पैरामीटर एस्टिमेट करोगे तभी उस पी को कंसीडर करोगे. लेट से आपसे बोल दिया गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं. लेट से आई हैव 20 samples with me and I'm saying there are 5 bins. I need to check are they following uniform distribution of 2, 3 something like that, like AB whatever. So इस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? Tell me. You have 20 samples. You have 5 bins. एंड ये मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिए रखा है. बेसिकली ये आपकी स्मॉल वैल्यू है, मिनी ये आपकी मैक्स. सो हाउ डू यू थिंक यू विल कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर? Are the 5 bins divided equally? I mean it's uniform distribution, so expected कैसे आएगा? And then we can go with like 20 minus 2 minus 1. पहली बात तो 20 is number of samples, 20 is not your number of bins. So when you do n minus p minus 1, n is not your number of samples, n is number of bins. So यहाँ पे number of bins कितने? 5. तब बात आती है कि क्या हम पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे कि नहीं. सो जब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लेट से मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5 डब्बे हैं और आपके पास 20 टॉफीज. चाहे आप कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये ले लो, आपके डिब्बों के अंदर कितना आएगा? 20 by 5 which is 4. तो जब आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, आपको ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, you do not care. So that is why in this case p equals to 0 and you have -1. So in this case also you will have this same 4 until unless, जैसे मैंने कह दिया कि 20 सैंपल थे, 5 बिन थे, और मैंने कह दिया I am following a Poisson distribution. I did not give you any lambda. Poisson distribution में we need lambda. So in this case, can anyone tell me what is my degree of freedom? 1.
like 5 minus What? 1 minus 1. Is it Three. like 5 Correct, minus 1 minus 1? correct. So you should remember, इस केस So में we will be estimating lambda, और वो lambda हम लोग सैंपल से निकालेंगे. So this part should be clear. so And basically अगर वो पैरामीटर दिया नहीं होगा then we have to estimate, right? If it is given the correct. value, we don't have to take it into consideration. करेक्ट. हाँ, जैसे हो सकता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बोल दिया कि वी आर डूइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी किस चीज का, With वी mean आर and डूइंग नॉर्मल variance, डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, करेक्ट. वो आपको then मीन we एंड don't वेरिएंस have दे to देंगे. calculate. नो तब आप नहीं करते. But So there can be a case like एक का ही दिया होगा, like only the mean is given, the variance is correct. given. That time I have to take one, right? Parameter. करेक्ट. वेरी गुड. Okay. वेरी गुड. दिस पार्ट इफ यू वांट टू एम्फसाइज कि ये कैसे होता है नॉल, इसका क्विज 1 के डाउट सेशन में देखना. बहुत डिटेल में मैंने समझाया था. लेट्स से आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया है कि कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 5 पैरामीटर है, लाइक ऐसे कुछ सिखाया था. लाइक लेट्स से कोई देयर इज सम डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से डी, और उसको एस्टिमेट करने के लिए नीड 5 पैरामीटर, अल्फा, बीटा, गामा एंड यू हैव समथिंग न्यू. तो अगर मैं आपको ये 3 दे रहा हूँ क्वेश्चन में पहले से, और सिर्फ आप न्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका पी क्या बनेगा? 4 की 1. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पी? 1. करेक्ट. क्यों? क्योंकि आई एम ओनली एस्टिमेटिंग द थिंग which I am I mean I do not care इसमें 10 पैरामीटर हो, इस डिस्ट्रीब्यूशन में 5 हो, 2 हो, 1 हो, whatever I am estimating, I will only report that. So please pay attention to this part. Give me a second, I am opening one passage. 2024 must be here. It will be diploma degree, foundational diploma. So okay, I think they have removed some paper or whatever. But again, one thing, okay, I think this major chunk should be clear. By the way, can you share that question, whosoever that was, for the coin and bulb thing, which someone was asking? I will take that up. Apart from that, I will come to this part, which is basically a theory for week 7, logistic regression. This is important very much. 2 things you should know. First is reading a confusion matrix. This is very important part. Even in quiz 2, you had a 4x4 confusion matrix. So people, again, they were troubled because they mugged up the formula. So you should remember these things. Let's say you have 3 categories: A, B, C. A, B, C. This side is actual. This side is predicted. And we will fill up random values. Let's say 3, 4, 9, 7, 2, 1, 9, 0, 1. So अगर मैं आपसे बोलूं what is my precision of class B, तो आप कैसे निकालोगे? पहले मुझे कोई प्रिसीजन की डेफिनेशन बताना सबसे पहले, बिकॉज ये वाला तो आपको मतलब फॉर श्योर आपको दिख ही जाएगा एग्जाम में. Confusion matrix, logistic regression, either confusion matrix or your, what do I say? It is called logistic regression का basic thing, like logics predict करना and label निकालना. तो ऐसे क्वेश्चन आपको फॉर श्योर मिलेंगे. तो टेल मी, आप लोग प्रिसीजन कैसे निकालते हो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से? Guys, anyone? प्रिसीजन का फॉर्मूला या प्रिसीजन की डेफिनेशन, समथिंग? Precision is how good are we predicting the according to, I mean related to that actual thing, right?
How good Then what is is it recall? predictive, or how good is it compared to that of the Uh, actual one? recall, can you tell me what's recall? I actually don't know. Okay, so no problem. Yeah. I will suggest in short notes. I have given the definition. Read that one because that is also like if you remember the definition, meaning of definition, then it's more than enough. So we have this thing: precision of given class is fraction of correctly predicted samples out of total samples that were predicted as that particular class. तो अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं इन लाइन का what is the meaning. I'll copy it back. I will again share the one more. I hope the text is clear here. Or do I need to zoom more? Yeah, it's readable. Yeah. So precision. Let's say आपका कुछ ऐसे सीन होगा, right? You have something actual में existing. Then you made a model, and then there are some prediction. So you should realize मॉडल क्या करता है, एक्चुअल से पहले डेटा सीखता है, फिर वो कुछ प्रिडिक्शन करता है. तो जब हम बात करते हैं प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन क्या कहता है, आपने कुछ भी बोला है, आपने जो भी बोला है उसमें कितनी सच्चाई है. प्रिसीजन इज ओनली डीलिंग विद आपने जो भी बोला है, दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर. प्रिसीजन इज रिगार्डिंग दिस वन. आपने जो भी बोला उसमें कितना सच है. So remember this thing. Precision of a given class is fraction of correctly predicted samples. यानी कि सच कितना है out of the total samples that were predicted as that particular class. यानी कि जो भी आपने उस क्लास के लिए बोला है. So when we are coming to this thing, so अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हो, this one, so this side is saying कि A के कितने एक्चुअल में थे. It was 3 plus 4 plus 9. इस साइड अगर एक्चुअल लिखा हुआ है तो दैट मींस दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज माय क्लास ए. तो ये जो पूरी रो है, इट इज टेलिंग मी कितने नंबर आपके एक्चुअल में ए क्लास के थे. यानी कि 3 plus 4 plus 9 वाज माय एक्चुअल में ए क्लास. सिमिलरली अगर मैं एक्चुअल में बी क्लास की बात करूंगा तो इट वुड बी 2 plus 7 plus 1. सो दिस इज हाउ वी रीड. हो सकता है आपके एग्जाम में एक्चुअल की जगह इधर प्रिडिक्टेड लिखा और एक्चुअल ऊपर लिखा हो, तो फिर आपका वो कॉलम सब बन जाएगा. तो प्लीज आंखें खोल के रीड करना, ऐसे मगअप मत कर लेना फॉर्मूला टीपीटीएन कहाँ होता है एंड ऑल दैट स्टफ. ये सब चीजें करोगे तो पक्का फेल होगे. तो प्लीज बी केयरफुल, be cautious what you are doing. And business analytics में there is no such complex calculation. I have told this multiple times. It's mostly some trick sentence. There is some sentence telling you something and you ignore that thing, or you are in flow of calculation. You do not see some basic thing. So बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रेडिक्टेड इस साइड दे दिया, एक्चुअल ऊपर दिया हुआ है, लोगों ने आंख बंद करके अपने फॉर्मूले जो रटे थे कि ये सेल प्लस ये सेल करना है तो वो कर देते हैं एंड वहां गलत हो जाता है. तो प्लीज रिमेंबर, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल and I'm reading let's say actual of C, so that means ये plus ये इतने मेरे एक्चुअली में C थे. तो that is how we interpret. अब हम बात कर रहे थे प्रिसीजन की, यानी कि प्रिडिक्शंस में से कितनी सच्चाई है. तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ये ऊपर वाले प्रिडिक्शन की साइड है. सो जब हम कह रहे हैं कि हमारे मॉडल ने कितना बोला होगा कि ये बी के हैं, लेट्स से, तो मॉडल बताएगा कि इन इतने सैंपल्स की क्लास बी है. सो दैट वुड बी 4 plus 7 plus 0. 4 plus 7 plus 0 would be my prediction of B. So it's very simple to read. जिस भी साइड प्रिडिक्शन या एक्चुअल लिखा हुआ है, लेट्स से अगर रो की साइड लिखा हुआ है एक्चुअल, तो आप रो का सम कर देना. अगर कॉलम की साइड लिखा हुआ है तो आप कॉलम से सम कर देना, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर दैट थिंग. सो अगर आप ये कॉलम सम कर रहे थे तो ये आपका क्या बनना था, जिस भी क्लास का है कॉलम, उस क्लास के टोटल कितने प्रिडिक्शन थे. जिस भी क्लास का आप रो कर रहे हो उस क्लास के कितने एक्चुअल थे. सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. Now coming back to this thing, precision of class B, that means total my model set B upon actual B. So अगर आप इस चीज को देखो, B को कितने, अभी मैंने बताया कि ये प्रिडिक्शन ऑफ B की लाइन है, यानी कि 4 plus 7 plus 0 इतनी बार मेरे मॉडल ने चीजों को B बोला होगा, यानी कि 4 plus 7 would be 11 and 11 plus 0 would be this. तो मेरे मॉडल ने 11 चीजों को बी बोला, लेकिन क्या वो 11 की 11 एक्चुअली में बी है? नो. उसमें से सिर्फ कितनी सही है?
that is, you can see from here, actual में B is coming from this side and this is also predicted का B. So that means if ये वाला जो matching का column है, this is only the correct precision. So that would be 7/11. So ये है मेरा प्रिसीजन फॉर क्लास बी. नाउ अगेन इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे. आपको एग्जाम में बहुत बार बोला जाता है कि परसेंटेज में वैल्यू लिखो. तो लेट्स से ये आपकी 7/11 समथिंग 0.8 समथिंग आया, उसको आप कन्वर्ट करोगे 80 पॉइंट समथिंग जो भी आपका बनेगा परसेंटेज में. क्विज 2 में लोगों ने करा था, क्विज 2 में रिलैक्सेशन मिल गया क्योंकि बच्चों को पास करना था जो भी हो सकते थे, लाइक दैट क्राइटेरिया 7/20 थे. बहुत लोगों का फेल हो रहा था तो दे समहाउ गेव रिलैक्सेशन 50% मार्क्स, बट एंड टर्म में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट मिस्टेक. सो प्लीज जो भी एग्जाम दे रहा है आंख खोल के वहां पे अगर डेसिमल लिखा हुआ है तो आप डेसिमल में एज इट इज लिख देना. इफ दे आर सेइंग आंसर द प्रिसीजन और रिकॉल इन परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डू दैट. सिमिलरली अब मुझे ये बताओ यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रिसीजन ऑफ क्लास सी, देन व्हाट विल यू टेल मी? It's a very easy 9/19. 9/9 + 1 10. हाँ करेक्ट. सो दिस इज द करेक्ट थिंग क्योंकि टोटल मेरे मॉडल ने कितनी प्रेडिक्शंस बोली सी की, इतनी थी. उसमें से एक्चुअली में करेक्ट कितनी सी की थी, इतनी थी. दैट इज 9 दिस टोटल का सब 19. एक चीज जो काम आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी मैं रिकॉल के लिए भी बताऊंगा. यू शुड रिमेंबर अगर जब आपकी मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में है, एक्चुअल इस साइड है और प्रेडिक्शन ऊपर की साइड है. सो रिकॉल के लिए आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है रो का सम, आर से रिकॉल, आर से रो का सम. और प्रिसीजन के लिए आपका ऑब्वियसली रो का सम हो गया यूज, तो अब कॉलम का सम आ जाएगा. एंड ऊपर क्या आता है, जो भी आपका मैचिंग कॉलम, जैसे कि यहाँ पे सी ये था और यहाँ से सी ये आ रहा था, तो बेसिकली डायगोनल वाले जो कॉलम्स होते हैं वही आते, सेल होते हैं नॉट कॉलम, डायगोनल वाले जो सेल होते हैं आपके सिर्फ वही आते हैं. सो ये वाला सेल, ये वाला सेल या ये वाला सेल, इन्हीं में से कुछ आएगा. सो जब आप सी की बात कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली ये वाला आता है. सो जैसे हम बात कर रहे थे प्रिसीजन ऑफ क्लास सी, तो आपको पता था ये डायगोनल है यानी कि ये ट्रू मैचिंग वाला है. यहाँ पे 9 था तो ऊपर 9 आ गया. और प्रिसीजन में जैसे मैंने बताया कॉलम का सम आ जाता है, तो ये मेरे सी वाले कॉलम का सम आ गया विच इज 90. अब आप इस चीज से ए का भी प्रिसीजन निकालो तो यही आएगा. सिमिलरली जब रिकॉल की बात होती है, रिकॉल का डेफिनेशन इफ यू विल रीड आउट, रिकॉल ऑफ अ गिवन क्लास इज फ्रैक्शन ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड सैंपल्स आउट ऑफ टोटल सैंपल्स दैट actually belong to that particular class. It is saying, precision was saying आपने जितना बोला उसमें कितनी सच्चाई है. Recall is saying आपने कितना सच्चाई बोला, यानी कि जो भी आप बता रहे हो उसमें वो कितना सच है. तो लेट्स से यहाँ पे अगर 100 चीजें थी और मैंने सिर्फ बोला 80, सो दिस इज बेसिकली कैप्चरिंग माय रिकॉल. मैंने 100 में से कितना सही बताया, दिस इज माय रिकॉल पार्ट. सो सिमिलरली जैसे हम लोग ने ये काम करा था, सेम हम लोग रिकॉल के लिए भी करते हैं. मैट्रिक्स होती है एंड देन वी डू द सेम थिंग. सो लेट्स से अगर इस वाली मैट्रिक्स में आई आस्क यू व्हाट इज रिकॉल ऑफ ए, सो व्हाट विल बी द आंसर? रिकॉल ऑफ ए के लिए आप कैसे यूज करोगे, जैसे प्रिसीजन का बताया था सेम थिंग करनी, बस थोड़ा अपोजिट चले जाना है. 3/16. ओके 3 + 4, हाँ ओके. जो भी सम आएगा आपका 3, क्योंकि ए और ए का मैचिंग ये था, सो इट इज 3 एंड देन 16 है. सो लेट मी ओपन द क्विज 2 व्हिच यू हैड इन योर एग्जाम. आई होप इसका अपडेट कर दिया हो. या ओके, give me a second, I'm opening the question paper which you had. Plus 2 an an में था कि fn में था? Okay, I think business in okay. Let me come back here. Yeah, this one. This was your quiz 2, right? So अगर आप इसमें आओ, ये देखो इन्होंने क्या करा. अब n/n मतलब जो मैंने आपको तरीका बताया, यू शुड नॉट बी ओनली फोकस्ड ऑन 2/2. अब आप n/n हो, 100/100 हो, 4/4 हो, 3/3 हो, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. सो दिस वाज योर एक्चुअल क्लासेस यानी हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब. यहाँ पे प्रिडिक्टेड था और टोटल इन्होंने बोला 600 कार्ड थे.
अगर आप इन सारे सेल्स का सम करोगे तो 600 ही बनेगा। तो इन्होंने अब आपसे पूछा व्हाट इज प्रिसीजन फॉर प्रिडिक्टिंग हार्ट्स। तो अब इसको देख के मुझे बताओ आप हार्ट का प्रिसीजन कैसे निकालोगे। नॉट एग्जैक्ट आंसर, आप प्लस माइनस ऐसे भी बोल सकते हो, 100 अपॉन समथिंग प्लस समथिंग। जस्ट बी क्विक। अगर आपको ट्रिक्स याद है, इफ यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, देन यू आर बिजनेस एनालिटिक्स का पेपर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो बहुत इजीली। लाइक कैलकुलेटर ऑलरेडी होता है, you do not need to do calculation by hand. It's very quick to understand the pattern. So please, अभी अभी आपने सीखा है, tell me how will you do precision for hearts? 100 by 140. हाँ, basically I think इसका कितना बोला आपने, 100 by 140. okay, हाँ, so basically 100 upon 100 plus 15 plus 20 plus 5, और मतलब वही बनेगा, so correct. एंड एक चीज अगेन जो लोगों ने मिस करी थी, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस थिंग, नोट एंटर द आंसर इन परसेंटेज राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल इफ आंसर इज दिस थिंग, ये आपका परसेंटेज की बात हो रही है, ये आपका परसेंटेज है ना कि डेसिमल आंसर, तो आपको ये एंटर करना। तो आई होप आप समझ रहे हो, 100 by 140 जो भी है आपका, उसको आप डेसिमल में लाओगे, फिर उस चीज को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, एंड जो भी बनना है लाइक दिस, उसको आप 2 डिजिट राउंड करके डालोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका लेट्स से बहुत प्रिसीजन में आ रहा है, प्रिसीजन इन द सेंस लाइक ऐसा भी आ रहा है, आप इसको भी डाल दोगे 10.235, वो भी चल जाएगा, बिकॉज वो आपको रेंज देते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट आंसर लाइक होल नंबर थिंग। सो राउंडिंग ऑफ का इतना इशू नहीं होता है, मोस्टली इशू होता है जो लोग ये नहीं करते हैं परसेंटेज में कन्वर्जन। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज, परसेंटेज में जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको एक बात समझनी चाहिए, वो कह रहे हैं परसेंटेज में 2 डिजिट, तो यानी कि आपका जो डेसिमल में आपका प्रिसीजन रिकॉल होगा वो कितने डिजिट तक होना चाहिए? हाउ मेनी डिजिट्स डू यू नीड इन डेसिमल? Minimum 4. करेक्ट, मिनिमम 4। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डेसिमल में प्रिसीजन निकालेंगे लेट्स से 0.83, और लेट्स से अगर एग्जैक्ट आंसर था 0.836, सो लेट मी शो यू दिस डिफरेंस एज वेल। राउंडिंग ऑफ का इशू यहाँ पे आता है, बिकॉज वो बीच में ही राउंड ऑफ कर देते हैं बिना सोचे समझे। लेट्स से मेरा प्रिसीजन ऑफ क्लास से आया 0.8356, बट क्योंकि आई वॉज लेजी, मैंने बस इतना 0.83 देखा और छोड़ दिया। फिर अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल से परसेंटेज में, इट वुड बी 83%। इसको कन्वर्ट करोगे इट वुड बी 83.56%। तो अगर उन्होंने रेंज शॉर्ट दे दी, लेट्स से कभी कभी वो प्लस माइनस 0.01 भी देते हैं, कभी कभी प्लस माइनस 0.5 भी दे देते हैं, वो डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर। आई वुड नॉट से एग्जैक्ट थिंग्स, बट इवन आई डोंट नो कितना क्या रेंज होता है, बिकॉज टीएस डोंट हैव एनी एक्सेस टू पेपर विच इज नीड। सो यू शुड सी द डिफरेंस, यहाँ पे 83 आ रहा है, यहाँ पे आपका 83.56। सो दैट इज वाई जब भी प्रिसीजन रिकॉल निकालना, आपके पास कैलकुलेटर होता है, प्लीज इतना आलस मत करना, 4-5 डिजिट तक निकालना और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज भी लिख सकते हो। यहाँ पे 56 आ रहा है, लेट्स से 5678 था, यहाँ पे 5678 आएगा एग्जैक्ट। अगर आप अपनी कैलकुलेशन मतलब इंटरप्रिटेशन पर श्योर हो कि प्रिसीजन इसको कहते हैं, रिकॉल इसको कहते हैं, मैंने सही से करा है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर भी डाल दोगे, कोई इशू नहीं आने वाला है। So I hope I have made myself very clear regarding this part. Is this question clear? Precision recall wala thing. Any doubt in this precision recall thing? Because ये I mean मान के चलिए आपका आने वाला है, like clear cut. I think mostly precision recall end term में आपको मिल जाएगा. You will also have your what do I say, one question related to लॉजिस्टिक और लीनियर का एक और क्वेश्चन जो बोनस 5 मार्क्स आते हैं, आई थिंक मोस्टली इट इज समवेयर अराउंड दैट ओनली। सो प्लीज इन चीजों को थोड़ा ध्यान से करना, दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अगेन। जो लास्ट के वीक्स हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, उसके लिए आप एक बार टीए सेशन वाला ही वापस से देख लो, जो क्वेश्चन टीए सेशन में हुए हैं, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट। स्वामी सर ने ये बात लाइव सेशन में डायरेक्टली बोली थी, that they won't be giving you something tough and numerical based. Mostly it's simple, what do I say, simple calculation, like कितने permutation बनने हैं, कितने combination बनने हैं, something like that. So if you see this question paper, this is last term end term, basically December 2024. So September वाले term का end term है. So you can see this question again. वापस से 3x3 की इन्होंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स दी थी और वही सब पूछा था। एक्यूरेसी कितना आएगा, एक्यूरेसी अगेन कितना आएगा बता सकता है कोई मुझे?
गाइस एक्यूरेसी कितना आएगा? मैंने आपको प्रिसीजन रिकॉल का बताया था, बट व्हाट इज एक्यूरेसी? diagonal sum by blend. करेक्ट अब आपको टोटल दिया होता है जनरली, वरना आप सबका टोटल करके निकाल सकते हो टोटल कितना है। तो आप टोटल डायगोनल का करो और जितने टोटल सैंपल्स हैं दैट इज इट। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 + 4 + 5 + 5 + 4 बेसिकली 10 14 और 30 पूरे के पूरे टोटल थे। तो 14/30 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन चेक दैट परसेंटेज में ऑब्वियसली कन्वर्ट करना। सिमिलरली प्रिसीजन फॉर प्रिडिक्टिंग डॉग। तो अगेन अब मैं वो वापस से नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए डॉग का प्रिसीजन, यानी कि 2 + 5 + 2 जो कि हो गया 9 मेरा डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि वो कॉलम का सम है, तो टोटल प्रिडिक्शंस है, और 5 क्योंकि वो मैचिंग वाला है तो न्यूमरेटर में आएगा, यानी कि 5/9 समथिंग अराउंड आपका 50% के ऊपर। यू कैन सी इट हियर। सो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आता है वो है इस टाइप का। वो आपको x1 x2 और y एक्चुअल दे देते हैं एंड देन यू हैव सर्टेन बीटास। सो एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कैसे होता है। आई एम फोकसिंग मोस्टली ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट बिकॉज लोग वहीं पे कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा वी विल गो बैक इन दी दैट पार्ट, इलास्टिसिटी का थोड़ा सा थ्योरी भी, बट मोस्टली अभी न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। एंड अगर बहुत नीड लगता है डिस्कोर्स पे, अगर ज्यादा डाउट्स आएंगे, हालांकि डिस्कोर्स पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सॉल्व। आप अगर जिस भी ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे हो उस ईयर के करेक्शंस वाली पोस्ट में जाना। करेक्शंस पोस्ट में सिर्फ करेक्शन ही नहीं होते हैं, बच्चे डाउट भी पूछते हैं कि ये क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन हुआ था, तो आपको हो सकता है वहीं पे आपका सोल्यूशन मिल जाए। या फिर डिस्कोर्स में आप बस कोई कीवर्ड सर्च करना, जैसे इसमें अभी हम लोग ने करा था ये हार्ट स्पेड्स एंड ऑल था, तो अगर आप इसको भी सर्च करोगे बिजनेस एनालिटिक्स कैटेगरी में तो आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ आई विल आस्क दिस थिंग अगेन। अभी मैंने एंटम डिवीजन में पूछा था, कैन एनीवन टेल मी दिस वन? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में ये जो आउटपुट देता है हमें सारा सम करके बीटा प्लस बीटा व्हाटएवर जितना भी सब है एक्स एंड ऑल, इसको हम क्या कहते हैं? जो इस साइड आता है व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? Logic. करेक्ट, दिस इज कॉल्ड लॉजिक या फिर लॉग ऑफ ऑड्स। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो होती है लॉग ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी अपॉन 1 - प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग बीटा। Are you writing something? Because it's Oh. not. ओके आई थिंक मेरा मैंने वो नहीं शेयर करा बट दिस ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग मी बैक। सो समथिंग लाइक दिस वन। सो जो भी आपका वेटेड सम होता है ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। एक सब गलती यही करते हैं, आंख बंद करके देखा बीटा लिखे हुए सारे सारे, बस एक्स और वाई पुट इन करना चालू कर दिया और उनको लगता है वापस से आ जाएगा। नो, नहीं आने वाला। वट एवर यू विल गेट बाय दिस वेटेड सम बीटा एंड ऑल दैट वुड बी योर लॉजिक, यानी कि दिस थिंग लॉग ऑफ दिस। आपको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, यानी कि इसको अगर हम y बोल देते हैं दैट वुड बी 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ y। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। ये जो चीज है इसको हम सिग्मॉइड कहते हैं या फिर लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, व्हाटएवर आप लोग एमएलटी में पढ़ोगे इसको डिटेल में। बट यहाँ पे मेन काम ये सबको ध्यान रखना था कि जो वेटेड सम होता है दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इसको पास ऑन करना पड़ता है इसमें सिग्मॉइड में, एंड देन वहां से आपको कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो लेट्स से हमारा ये डेटा सेट दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे मुझे बताना है यहाँ पे लॉजिक क्या आएगा पहली लाइन के लिए एंड इससे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सो बी क्विक, यू हैव दिस x1 x2 एंड आपकी इक्वेशन यहाँ से आप देख सकते हो, आपको बीटा दिए हुए हैं तो आपकी y इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स टू 0.3 plus 0.8 into 3 अभी x1 लिख देते हैं प्लस minus basically. 0.6 हाँ into 1.8. ओके, अभी ये लिख दिया। सो अगर हम पहले वाले का लॉजिक निकालेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से मुझे कोई बताए कितना? 1.8. 1.8। ओके, आई एम बिलीविंग यू। अभी तो प्रैक्टिस चल रही तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी श्योर। 1.8 मैंने भी सॉल्व नहीं करा बट या Sir, I'm outside house, so I won't be able to attend this class. Can you tell me that is it available on recorded lectures? या वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। Sir, where?
Nilgiri House president would share that thing, so I'm not sure. He will share that thing. You can reach out. जहाँ से भी आपको मैसेज आया, obviously आप उससे पूछ सकते हो. But we will circulate it again. Don't worry. Discourse पे भी I'll put it. Discourse पे all the recordings are there. इसका भी recording I'll add. It's not a problem to put it there. So जैसे ही recording आ जाएगा, I'll put that thing. Don't worry. Okay, sir. Thank Okay. you. Logit जो है आपका, I am assuming. Can anyone confirm यही आंसर आ रहा है 1.8 या फिर कुछ और? Sir, can you please show how this logic came? Sorry, how? What? How to calculate this logic for one thing? ओके आपका जो x1 x2 दिया हुआ है कस्टमर आईडी 1 के लिए, राइट, x1 x2 दिया हुआ है, उसको आप इस इक्वेशन में रख दोगे. Okay, okay, got it. Yes, sir. तो इसमें रख के मुझे बताओ लॉजिक कितना आ रहा है. 1.8 ही आ रहा है सबका. ये जो बीटाज आपको दिए होते हैं, बीटा 0 बीटा 1, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए. इस तरीके से हम लिखते हैं बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 सो ऑन सो फोर्थ, और दैट्स इट. सो गाइस बी क्विक. कितना आ रहा है लॉजिक? इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन. It's 1.8 only. हाँ ठीक है, चलो 1.8 है. सो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी. मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया है यहाँ पे, राइट. प्रोबेबिलिटी बेसिकली जो भी आपका लॉजिक बना हुआ है, यानी कि दिस थिंग जो भी आपकी वैल्यू आई है, इसको आपको सिग्मॉइड में पास करना पड़ता है. तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू सिग्मॉइड, ये सिग्मॉइड का फंक्शन होता है 1.8, यानी कि 1/1 प्लस e की पावर माइनस 1.8. इसको सॉल्व करो, कितना बनना है? 0.858. 0.858. 858. सिमिलरली अब आप ऐसे ही अपने आप सारे रोज का निकालना. आपको ये अपने आप करना होगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, बहुत चीजें डिस्कस करने को है. तो सिमिलरली आप ये निकालोगे. अब आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड दिया हुआ है. तो ये थ्रेशोल्ड क्या बला होती है? तो यू शुड अंडरस्टैंड, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आई है ये लेबल नहीं है. वाई एक्चुअल आप देख रहे हो ना, ये 0-1 के फॉर्म में है. सिमिलरली आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को भी लेबल में कन्वर्ट करना होता है. तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है. पहले आपने लॉजिक निकाला, लॉजिक से आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी से आप लेबल निकालते हो. तो आपको ये सब माइंड मैप्स आपके क्लियर होने चाहिए कि प्रिसीजन निकालना है तो मैं प्रिडिक्टेड वाले का सम करूंगी, उसको डिनोमिनेटर में रखना है और मैचिंग को न्यूमरेटर में. सिमिलरली अगर ऐसी चीजें कुछ आ रही हैं, राइट, आपको दिख रहा है कोएफिशिएंट दिए हुए हैं और x1 x2 दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे लेबल, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे भी वो आपसे वही चीजें पूछेंगे, प्रिसीजन क्या है या ट्रू पॉजिटिव कितने हैं वगैरह वगैरह. सो व्हाट हैपेंस इज आपको लेबल चाहिए होते हैं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव या प्रिसीजन निकालने के लिए. वाई एक्चुअल के साथ साथ वाई प्रिडिक्टेड चाहिए. तो वाई प्रिडिक्टेड कैसे निकलता है, दैट इज व्हाट दे आर टेस्टिंग. वाई प्रिडिक्टेड निकालने के लिए पहले लॉजिक निकाला, लॉजिक से प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हम थ्रेशोल्ड से चेक करते हैं. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है तो हम उसको ऊपर की साइड कर देते हैं, यानी कि 1, ये ऊपर चला जाएगा, 1 हो जाएगा. ट्रू फॉल्स भी आप कर सकते हो. लेट्स से अगर यहाँ पे ट्रू लिखा होगा तो ये ट्रू बन जाएगा, और 0.35 से कम होगा तो फॉल्स बन जाएगा. तो वट एवर बी द थिंग, लाइक पास नॉट पास, आप समझ सकते हो. सो जब भी हमारा प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे बड़ा होता है तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं. तो इसका लेबल 1 बन जाएगा, यानी कि वाई प्रेड इसका 1 बन जाएगा. सिमिलरली लेट्स से इसको हमने सॉल्व करा, कुछ वैल्यू आई लॉजिक की, प्रोबेबिलिटी निकाला, तो प्रोबेबिलिटी पता चला हमारी आई 0.009, बहुत छोटी वैल्यू है. तो इसका लेबल क्या बनेगा? 0. करेक्ट. सो ऐसे आप इन सारी रोज का निकालोगे. 6 रोज हैं और आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन बोनस में आते हैं. इफ यू डू नॉट नो, एग्जाम आपका 40 मार्क्स का होगा, बट पेपर में 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो आपके पास 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का ऑप्शन होता है. तो अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन जैसे क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हो, जो बीच के 3 वीक्स हैं आपके क्विज 2 वाले मोस्टली, बहुत अच्छा चांस है 5 मार्क्स का बोनस भी उधर ही से आए. तो अगर आपने 1-2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लिया तो आप एक बहुत बड़ा चंक अपने हाथ में श्योर शॉट इकट्ठा करके जाते हो एग्जाम में. और जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आप लोग की रही है क्विज 1 क्विज 2 में, आई हैव सीन, प्लीज मेक श्योर एंड टर्म में आप ऐसा ना करो, बिकॉज एंड टर्म में ऑल्सो यू नीड 10 आउट ऑफ 40 मार्क्स अलोन, यानी कि सिर्फ एंड टर्म में आपके 10/40 होने चाहिए. क्विज की तरह ही है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो यू विल हैव टू रिपीट द एंटायर कोर्स. तो प्लीज
2-3 टॉपिक ही पढ़ो अगर पढ़ रहे हो, लेकिन अच्छे से पढ़ के जाना कि ये वाला तो आपका क्राइटेरिया मेंटेन हो जाए, इसमें इशू ना आए, कोई आके ये मत रोए कि प्लीज पास कर दो। लाइक मैंने 9.5 वाले भी देखे हैं, वो नहीं करते पास। सो आई होप आप 2-3 टॉपिक जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ के जाना। तो नाउ आपके पास लेट से यहाँ से वो निकल आएगा 10 नॉट, तो ऐसे आपका वो निकल आता है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसी लेट से वो कहेंगे कस्टमर आईडी 5 का प्रिडिक्टेड लेवल क्या है, तो आपने जो भी सॉल्व करा है वो भी आ सकता है। फिर अगेन वापस से कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनती कैसे, अभी हमने सीखा था कंफ्यूजन मैट्रिक्स रीड कैसे करते हैं प्रिसिजन रिकॉल निकालना, लेकिन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनती कैसे है। तो आपने ये चीज देखा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपको y एक्चुअल, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लाइक इट इज गिवन हियर 1 1 फिर 4 0, 1 1 फिर 4 0 y प्रिडिक्टेड। अब ये चीज आप मुझे रैंडमली बता दो, कोई भी ऑर्डर में, टेल मी, जस्ट टेक अ रैंडम गेसेस, 0 1 whatever should I say, what should I say? 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। okay, so ये हमने मान लिया, like this is something which we are assuming, कोई ये मत कहना कि सॉल्व करके कुछ आ रहा था, this is something just for ease of purpose। so now हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। अभी हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स 2 by 2 बनेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 लेवल है, 0 1, तो एक हमने लगाया 0 1 1 1 0 1 1। ये साइड हमने कहा है एक्चुअल, ये साइड है हमारी प्रिडिक्टेड। नाउ टेल मी यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे हम किस वैल्यू को रखते हैं, जहाँ इसको पे क्या कहते हैं? एक्चुअल एंड which is 0 in both. ओके हाँ, उसको हम नाम क्या कहते हैं, विच इज 0 इन बोथ? ट्रू पॉजिटिव। True negative. नो पापा, ट्रू नेगेटिव। ओह सॉरी। ओके, यहाँ पे आएगा फिर ट्रू पॉजिटिव सिमिलर वे में, क्योंकि जो इसको रीड कैसे करते हैं, लाइक जैसे किसी ने अभी बोला था जहाँ पे दोनों 0, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये दोनों 0 है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब वो पहले भी पॉजिटिव था, सॉरी ट्रू नेगेटिव का मतलब वो पहले भी नेगेटिव था और मेरे मॉडल ने भी उसको नेगेटिव ही बताया है। ओके, सो दैट इज वाई आप देखोगे सिर्फ एक ही ऐसा है जहाँ पे पहले भी 0 था बाद में भी 0, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 0,0 के पेयर सिर्फ एक ही है हमारे पास, एक अकेला यही है जहाँ पे 0 पहले भी था और बाद में भी बताया गया। इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, एक्चुअल में 0 था और मॉडल ने प्रिडिक्ट भी यहाँ पे 0 ही करा, राइट? और इतने कितने हैं हमारे पास, एक यही अकेला पेयर है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने टोटल काउंट किया। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में 0 था बट मेरे मॉडल ने कहा कि ये 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? False positive. फॉल्स पॉजिटिव। वेरी गुड। सिमिलरली ये फॉल्स नेगेटिव बन जाएगा और ट्रू पॉजिटिव। तो टेल मी द वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आनी चाहिए। जैसे हमने चेक करा था, ट्रू नेगेटिव के लिए पहले भी 0 बाद में भी 0, तो पहले 0 बाद में 0 कितने पेयर हैं? सिर्फ एक ही है, एक यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, पहले 0 और बाद में फॉल्स पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए बाद में? 1। करेक्ट। फॉल्स पॉजिटिव मतलब पहले वो नेगेटिव था लेकिन मेरे मॉडल ने उसको फॉल्सली पॉजिटिव बोला है। तो प्लीज इस वर्ड का मीनिंग ही यही है, मेरे मॉडल ने उसको गलत तरीके से पॉजिटिव बोल दिया। तो हम कितने ऐसे पेयर हैं जो पहले 0 थे लेकिन उनको बाद में 1 बोला है, तो हम देखते हैं ये 3 हमारे ऐसे थे, ये 3 यहाँ पे आ गए। फिर फॉल्स नेगेटिव कितने, यानी कि पहले 1 था लेकिन मेरे मॉडल ने उसको 0 बोल दिया। करेक्ट। और फिर जो भी बच गया आपका वो ट्रू पॉजिटिव, यानी कि वो यहाँ पे आ गया 1। तो अब आपकी मैट्रिक्स वापस से बन गई है 0 1 0 1 वगैरह वगैरह। अब वो वापस से आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे, प्रिसीजन ऑफ 1, प्रिसीजन ऑफ रिकॉल ऑफ 0 1 वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें आपको पीछे मैंने कैसे मैट्रिक्स रीड करते हैं और निकालते वैल्यू बता दिया था। सेकेंड पार्ट आपने ये सीख लिया कि रॉ वैल्यू से हम लॉजिक से प्रोबेबिलिटी फिर लेवल कैसे निकालते हैं और उस लेवल का यूज करके हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते कैसे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से ये 2 पार्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। लाइक जहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी, एनीवन एनी डाउट हियर? I have doubt regarding the not a doubt during the exam. अभी तो फिलहाल I am using any sort of calculator to get the sigmoid function value. But during the exam, in that exam halls calculator, is there any trick to calculate the sigmoid function easily? No, I'll tell you what.
आप अपना ये लाइन कॉलम बाय कॉलम करा करो। आपने सारे अपने लॉजिक एक साथ निकाल मतलब लॉजिक सारे निकाल के रख लो साफ सुथरे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन बना दो। अगर आपको ये बहुत वो लग रहा है लाइक डिफिकल्ट, तो आप ये भी कर सकते हो, क्या नाम है, आई थिंक इसके लिए ई की पावर सेम ही होता है, मतलब ई की पावर वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वाई। तो आप हर लॉजिक के लिए ई की पावर वाई निकाल लो। फिर आपके पास बस यही करना होगा, जो भी आपके पास वैल्यू है, लेट से मेरे पास ई की पावर वाई यानी ये लॉजिक था मेरा, लॉजिक के मैं पावर लूंगा, लेट से 5 आ गया, तो फिर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 5 अपॉन 1 प्लस 5 करना है। तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन को साफ सुथरा लिख के करते हो तो आपको नहीं होगा प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप माइनस वाई हाँ सॉरी ई की पावर माइनस वाई होगा नहीं? हाँ, लॉजिक आपका ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस वाई। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वाई। यहाँ पे पावर माइनस वाई है, ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे ऊपर ई की पावर वाई है और पॉजिटिव में है। बेसिकली सेम ही चीज है। अगर इस चीज को आप डिवाइड कर दो ऊपर नीचे की पावर वाई से, तो ये 1 बन जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1। और ये चीज वापस से आपका 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई प्लस 1। तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, आप जैसे भी करो। आई मीन कैलकुलेट करने की आपकी आदत होनी चाहिए अब, बट वट एवर बी द केस आप ऐसे ही करोगे सॉल्व। तो एक ये चीज थी। देन आई विल कम टू दिस क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड टू मच। इसका भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व, गिव मी अ सेकंड। समझ से जीए में प्रॉब्लम है ऑल्सो। हाँ, जीए के प्लीज, जीए के मार्क्स अभी अपडेट नहीं हुए, डैशबोर्ड में सिर्फ वो ऐसे ही दिख रहा है। तो डू नॉट पैनिक कि जीए में 0 मिला, जीए 3 में जब भी मार्क्स अपडेट होंगे आपको सब दिख जाएगा। आई थिंक विच वी वर डूइंग someone posted this one. Okay. Image, come back here. This is your revision. This is again your quiz 2-1. ये वाला कितने लोगों से सॉल्व हो गया था, इसमें समझ में आ रहा है क्या पूछा गया क्या नहीं? मेरे से फर्स्ट ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, रेस्ट इट वाज सॉरी क्या बोला आपने? like only the first part was I was able to solve for the first ओके table. ओके हाँ। सो जस्ट टू लेट यू ऑल नो, एक बार एंड टर्म का रिवीजन देख लेना। मैंने वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बताया था डिटेल में। पूरी डिटेल अभी तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लोगों को पता होनी चाहिए। एसएसटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाई आई माइनस वाई बार, तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे कहीं भी आपका वाई प्रिडिक्टेड नहीं आ रहा है, यानी कि आपका जो एसएसटी होता है वो आप कोई भी मॉडल बना लो, क्योंकि वाई प्रिडिक्टेड आपका हमेशा इस पे डिपेंड करता है, बीटास पे, बीटा 0 प्लस बीटा 1 एंड ऑल। लेकिन जो एसएसटी है उसमें कहीं भी वाई प्रिडिक्टेड नहीं आता है। वाई आई आपका एक्चुअल वाई होता है और वाई बार उन सभी का मीन होता है। तो दैट इज वाई एसएसटी आप कुछ भी कर लो हमेशा सेम रहता है। जैसे कि लेट से अगर मेरा डेटा सेट ऐसा कुछ सा है, समथिंग लाइक दिस, ये कुछ पॉइंट्स थे और मैंने एक लाइन फिट करी बेसिकली लीनियर रिग्रेशन की, वो ऐसे गई। तो ये है मेरी लीनियर रिग्रेशन की लाइन, इसमें कुछ बीटा 0 होएगा और बीटा 1 होएगा। ओके, ये है एक्स पर, ये है आपका वाई। लेकिन जो मेरा एसएसटी है वो क्या कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट वाई बार ओनली। सो एसएसटी जो होता है वो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग होता है। दिस थिंग, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस वाई बार से निकाल लिया। तो दैट इज वाई एसएसटी आपका कभी भी चेंज नहीं होता। आप इस रेड वाली लाइन को कुछ भी कर दो, आपका एसएसटी ये इन्हीं सब चीजों का स्क्वायर करके सम होएगा। जो आपका एसएसआर होता है ऑन द अदर हैंड वो ऐसा होता है, जो एक्चुअल पॉइंट थे उनका लाइन से कितना डिस्टेंस है। तो जैसे ही आप अपनी लाइन बदलते हो, यानी कि आपने मॉडल बदला, आपका एसएसआर भी बदलने लगता है। सो एसएसटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर मॉडल, एसएसआर इज डिपेंडेंट ऑन मॉडल। और क्योंकि एसएसई विच इज बेसिकली योर एस, दिस वन सम स्क्वायर रेसिडुअल, दिस वन
SSE, यहाँ पे आपका ये होता है SST माइनस सम स्क्वायर रिग्रेशन। तो ये भी आपका मॉडल पे डिपेंड करता है। सो दैट इज द टू थिंग विच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे तो आप बहुत इजीली दिस माइनस दिस करके निकाल लोगे जो भी आएगा। यहाँ पे सब लोग फंस जाएंगे कि ये कैसे निकाले। इसके दो तरीके थे। अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली कि लेट से ये सेम ही डेटा सेट का है पार्शियल रिजल्ट, तो यहाँ पे भी 180 पॉइंट कितना था 1820.9 ही आएगा। ये 4 की वैल्यू इतनी ही है। एक चीज और जो आप याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर रेसिडुअल, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी दिस वन, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो, इम्पॉर्टेंट वंस। मोस्टली लोग यही कंफ्यूज होते हैं। बाकी बेसिक फॉर्मूले आपके यही थे, SST इज इक्वल्स टू SS रिग्रेशन प्लस SS रेसिडुअल, और R स्क्वायर इज इक्वल टू SS रिग्रेशन अपॉन SS टोटल, और आपका MS जो होता है वो SS/DF होता है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड करके तो ये आएगा A2/1, ये होएगा आपका A3/8। तो ऐसे निकलता है। F स्टेटिस्टिक कैसे निकलता है, मीन स्क्वायर रिग्रेशन अपॉन मीन स्क्वायर रेसिडुअल, यानी कि आपको ये मिल गया, ये मिल गया, इन दोनों को डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस एफ प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, सॉरी पी वैल्यू को कहते हैं सिग्निफिकेंस एफ इन केस ऑफ दिस टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए पी वैल्यू के बेसिस पे भी हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और वो करते हैं बाय डिफॉल्ट 0.05 के कंपैरिजन में। तो आपको रीड करके वो भी पता होना चाहिए कि कब आप रिजेक्ट करोगे कब नहीं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं स्पेशली इस पार्ट से जो आपको आनी चाहिए। देन वी विल कम टू दिस पार्ट which is basically your correlation and all that stuff. So you will see something like this, variables x, y, z, x, y, z. So you will see अगर इनमें correlation है, आपने स्टैट्स 2 में पढ़ा होगा, यानी कि R से हम डिनोट करते हैं correlation coefficient को। So this R आप देखोगे यहाँ पे मैट्रिसेस में कभी कभी भरा मिलेगा। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो होता है R, और जो आप यहाँ निकालते हो वो होता है R स्क्वायर। तो आंख बंद करके R स्क्वायर की जगह R मत लिख देना, क्योंकि आई थिंक पिछले ही एंड टर्म में क्वेश्चन था। लेट मी शेयर दैट थिंग अगेन। यू हैव दिस वन, I have shared this thing in the end term revision as well. You can see this one. This one. ब्लड प्रेशर, एज और वेट, 3 वेरिएबल थे, उनका उन्होंने कोरिलेशन यहाँ पे दे रखा है। क्योंकि कोरिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है, तो जो एज और ब्लड प्रेशर के बीच में आर है, सेम बीपी और एज के बीच में होगा। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से उन्होंने सिर्फ डायगोनल के नीचे वाले भरे हैं। हो सकता है 5/5 में आ जाए, 4/4 में आ जाए, बट आपको पता होना चाहिए क्या है। तो जब आप देखते हो यहाँ पे लिखा है 0.695, दैट मीन्स ये है आर बिटवीन व्हाट, बीपी एंड एज। ये बेसिक सा रीड करने का तरीका है। जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, वेट और एज के बीच का आर, आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर इज नॉट आर स्क्वायर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आर। आर स्क्वायर को हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है, if linear regression model is built between BP and age, then how much percentage of variability in BP can be explained by age? तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, what is this statement saying? How much percentage of variability in BP can be explained by age? इस statement का क्या मतलब होता है? Okay, they are just The R value basically the score. Sorry, 1 by 1. The R value. No, that is R square. When they say explainability, R square आपका explain करता है. R square is not about that thing. Correlation कैसा है वो आपको R से पता चलेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो चीज हम उससे पता करते हैं R से, यहाँ से। लेकिन
एक्सप्लेनेशन की जब बात आती है, यहाँ पे जब भी आप ऐसा कुछ सेंटेंस पढ़ो, हाउ मच एक्सप्लेनेबिलिटी, लाइक एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ वाई, sorry, this thing, how much percentage of variability in y, variability in y can be explained by x, जो कि आपका इनपुट होता है, ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट था. सो दिस इज योर आर स्क्वायर. यानी कि जब आप कोई मॉडल बनाते हो लीनियर रिग्रेशन का, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2 एंड ऑल, इस मॉडल का कुछ आर स्क्वायर आया. सो इस आर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? दिस इज दैट ओनली. ये आपका y के बीच का बताता है कि y कितना ज्यादा एक्सप्लेन हो सकता है. y में जो वेरिएबिलिटी है, यानी कि दिस थिंग यू आर सीइंग, ये वेरिएशन जो है आपके y के पॉइंट में, दीज पॉइंट्स, इतना ज्यादा वेरिएशन आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो. तो जब भी आप ये सेंटेंस पढ़ो, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबिलिटी समथिंग लाइक दैट, आपको पता होना चाहिए वो आर स्क्वायर पूछ रहे हैं. किसके किसके बीच का आर स्क्वायर पूछ रहे हैं? बीपी और एच का. तो बीपी और एच का आर स्क्वायर कैसे निकालोगे यहाँ से आप? गाइस इट्स वेरी क्विक, अभी अभी आपने रीड करा तो जल्दी से बताओ, बीपी और एच का आर स्क्वायर कैसे निकालोगे? सॉरी, Just age square. 0.695 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका आर स्क्वायर, क्योंकि ये कोरिलेशन दिया हुआ है, कोरिलेशन बिटवीन 3 वेरिएबल, ये आपके आर वैल्यूज है, ना कि आर स्क्वायर. तो ये एक छोटी सी चीज थी. फिर वो सिमिलरली आपसे बोलेंगे वीआईएफ निकालने को. वीआईएफ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 minus r square. करेक्ट, 1/1 माइनस आर स्क्वायर. अब लेट्स से उन्होंने आपसे बोल दिया वीआईएफ निकालो बिटवीन बीपी एंड वेट, तो आप क्या करोगे? 1/1 माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? 0.6 something. हाँ, बेसिकली 0.95 का होल स्क्वायर. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे जो लिखा होगा वो आर होएगा, जो आपसे पूछा जाएगा वो आर स्क्वायर होएगा. एंड इसमें आप एक्सेल वाला एक बार देख लेना, मोस्टली चीजें यहीं से आती हैं एक्सेल वाली चीजें इंटरप्रेट करने को. और आपको वो भी पता होना चाहिए सम स्क्वायर टोटल, सम स्क्वायर रिग्रेशन वगैरह के जो फॉर्मूले हैं, जिस कोर्स पे सारे के सारे लिख रखे गए हैं. तो प्लीज एक बार उसको देख लेना. आई एम ओपनिंग दैट लिंक अगेन which is here, this one. Okay, so these one, ये जैसे मान लो आपको बीटा वन और बीटा निकालना है, बीटा जीरो बीटा वन, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. और ये 3-4 फॉर्मूले हैं, एसएससी, एसएसटी, एसएसआर के. सो यू शुड नो दीज थिंग्स. बाकी लेट मी कम बैक टू दिस वन विच इज योर डिमांड रिस्पॉन्स कर्व. इस पे भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है. सो एक चीज तो अभी तक सबको पता होगी कि जो आपकी क्वांटिटी होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके प्राइस से. सो यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जानी चाहिए. ये आपकी हम आइडियल मार्केट सिचुएशन लेके चलते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम लग्जरी गुड्स एंड ऑल. सो बेसिक मार्केट कंडीशन. तो इसमें 2 कंडीशन बनती है. एक होता है क्वांटिटी या फिर आप डिमांड कह लो. आपने प्लॉट करा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये एक लीनियर ग्राफ बनना है. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड डिमांड रिस्पॉन्स कर्व विच इज लीनियर. इस केस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए. इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस. डिमांड एट सर्टेन प्राइस इज इक्वल टू D0 which is basically your this thing, intercept कितना है यहाँ पे, माइनस m टाइम्स P, this one. एक ये होता है. फिर इसमें इलास्टिसिटी की बात आती है. तो अब हम पहले एक इलास्टिसिटी बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. इलास्टिसिटी इज बेसिकली योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दिस थिंग, अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन P1. ये होता है आपका परसेंटेज चेंज वगैरह. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्योंकि एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, तो अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स इलास्टिसिटी आपकी हमेशा नेगेटिव आती है बाय डिफॉल्ट. इसी वजह से हम सिर्फ इसके मॉड वैल्यू लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड लेते हैं, बिकॉज हमें पता होता है
जब तक आपसे एक्सप्लिसिटली नहीं बोला जाएगा ये बात आपको पता होगी कि उनका अपोजिट डायरेक्शन में चेंज है। तो अगर मेरे पास इलास्टिसिटी बेसिकली ऐसे आ रही -2 मॉड लेके आई विल से 2, क्योंकि मुझे पता है दैट मीन्स अगर मैं अपने प्राइस को ट्वाइस करूंगा तो उसका कितना फर्क मुझे दिखेगा क्वांटिटी में। तो अगर मैंने प्राइस को 50% बढ़ाया तो दिस थिंग elasticity is basically 2. Elasticity is percentage equal quantity upon percentage effect. So I'm saying इसको मैंने twice कर दिया यानी कि this is 2. तो ये कितना चेंज हो जाएगा you will know इसमें उसका डबल चेंज हो जाएगा यानी कि 4। और ये 4 कैसा होएगा? If I am increasing the price this 4 would be down. If I am decreasing the price this 4 would be up. So this situation you should understand. Okay, someone raised their hand over. Is it? Yes. So is it business analytics? Yes, it's business analytics. So this you should know कि this is by default known कि जब आप ऊपर चेंज करोगे मतलब change is in opposite direction. So do not complain कि बहुत से न्यूमेरिकल में लोग ये गलतियां करते हैं। वहाँ पे लिखा होता है इलास्टिसिटी समथिंग, आंख बंद करके उन्होंने लिख दिया लेट्स से लिखा हुआ है इलास्टिसिटी 2, तो वो क्या करेंगे 2 इक्वल्स टू ऐसे ही लिख देंगे फॉर्मूला Q1 minus this for this thing. What you should understand, this 2 is magnitude only. तो या तो आप -2 लिख लो या फिर आप इस चीज को इंटरप्रिटेशन से निकाल लो कि अगर इलास्टिसिटी 2 है दिस मीन्स अगर मैं 10% नीचे प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरा 20% प्रोडक्ट्स कम बिकेंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू शुड अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन या फिर आप माइनस लगा के कर लो। अगेन ऑल्सो इलास्टिसिटी के 2-3 फॉर्मूले आपने देखे होंगे। दिस वन जो आप इस फॉर्मूले को देख रहे हो दिस वन Q1 minus Q2 upon Q1 दिस थिंग, इसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। क्यों? लेट्स से मेरा ग्राफ है, ये एक पॉइंट है P1 Q1, फिर ये एक पॉइंट है P2 Q2, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है। तो इसकी इलास्टिसिटी अगर निकालनी है तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला जो ऊपर पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये एक लाइन वाला ग्राफ है इस केस में ये थोड़ा सा कैलकुलस एंड ऑल में आ जाता है। आपके डिग्री लेवल पे कोर्स है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इलास्टिसिटी इज नॉट एग्जैक्टली दैट थिंग। आप लिमिट टेंड्स टू 0 लगा देते हो बेसिकली वेरी स्मॉल वन, तो आपका ये बन जाता है dq by q होल डिवाइडेड बाय dp by p। और ये d से आप समझ रहे होगे यानी कि बहुत स्मॉल चेंज की बात हो रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप हर बार ये अपना परसेंटेज चेंज ये वाला फॉर्मूला जो है परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज इन प्राइस आप बार बार ये यूज नहीं कर सकते। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अब इस केस में आप कैसे निकालते हो अपना फॉर्मूला? अगेन ये आपकी इक्वेशन है d इज इक्वल्स टू d नॉट माइनस mp। अगेन हमने अभी पढ़ा इलास्टिसिटी का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है वैसे आता है dq बाय dp q बाय p। अब आप अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो दिस वुड बी माइनस का m q इट वुड बी q नीचे p ऊपर प्राइस ऊपर q नीचे, so it would be माइनस का mp अपॉन q। q यानी कि ये d होता है तो दिस विल बी माइनस का mp अपॉन q को आप एक्सपैंड कर दोगे दिस इज नथिंग बट q d नॉट माइनस mp। तो दिस वाज योर इक्वेशन व्हिच यू गेट फ्रॉम दैट। सिमिलर बेसिस पे यू विल हैव दैट आल्सो। इसका हम मॉड ले लेते हैं तो इस वजह से माइनस वाला हट जाता है बाहर वाला। दैट इज व्हाई यू शुड रिमेंबर जब आपका लीनियर ग्राफ है उस केस में आप इक्वेशन जो यूज करोगे इलास्टिसिटी की वो ये यूज करोगे और ये वाली इलास्टिसिटी प्राइस पे डिपेंड करती है। एक दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डिमांड रिस्पॉन्स कर्व। वहां पे आपका इस तरह से होता है, वहां पे आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सो उस ग्राफ की इक्वेशन हम यूज करते हैं d इज इक्वल्स टू c टाइम्स p की पावर माइनस इलास्टिसिटी। तो आपको अगेन आप वही चीज वापस से डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपका आंसर आएगा इलास्टिसिटी तो कांस्टेंट होती है। सो एक ये फॉर्मूला बन जाता है इन द सेंस लेट से हमने इस ग्राफ पे 2 पॉइंट मार्क कर दी, ये है d1 और p1 और ये है p2 d2। सो इट वुड बी समथिंग लाइक log ऑफ d1 बाय d2 अपॉन log ऑफ p2 बाय p1। ये कैसे आया? आप इक्वेशन बस फिल कर दो
क्योंकि ये सारे पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और ये इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। ये कर्व की इक्वेशन है d1 इक्वल्स टू c टाइम्स p1 की पावर माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली d2 इक्वल्स टू c टाइम्स p2 की पावर माइनस एप्सिलॉन। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, c से c कैंसल, d1 बाय d2 इक्वल्स टू p1 बाय p2 की पावर होल माइनस एप्सिलॉन। लॉग ले लोगे, वापस से करोगे, यू विल गेट दिस सेम थिंग। शॉर्ट नोट्स में डेरिवेशन वगैरह सब कर रखा है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर लाइन वाली इक्वेशन दे रखी है लीनियर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको नॉन लीनियर कर्व या फिर कांस्टेंट इलास्टिसिटी बोला गया है, तो आप ये वाला यूज करोगे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, विच इज दिस वन। या फिर आप बाय डिफॉल्ट ऐसे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जैसे 2 पॉइंट्स की बात हो रही होती है, तो आप अपना ये वाला यूज कर सकते हो। और कई बार क्वेश्चन पेपर्स में लिखा गया है इलास्टिसिटी कांस्टेंट फॉर 2 months 3 months समथिंग लाइक दैट। तो 2 month 3 month वाले केस में आप अपना यही यूज करते हो बेसिक फॉर्मूला, जो कि परसेंटेज चेंज वाला होता है। 2 month 3 month या जहां आपको कंफर्मेशन नहीं है कि पूरी तरीके से हमेशा कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड व्हेन यू आर फॉर श्योर इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट। सो प्लीज 2-3 चीजें आपको अब ये याद होनी चाहिए कि कौन से केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स में ये सब मैंने बहुत क्लियरली लिख रखा है, तो प्लीज ये सब एक बार शॉर्ट नोट्स को ढंग से रीड करना, ये नहीं कि बस आके खोल के देख लिया। प्लीज उसको अच्छे से रीड करना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो एक बार खोल के पूछ लेना डिस्कोर्स पे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट। सो आई एम ओपनिंग दिस हियर अगेन, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर डिमांड रिस्पॉन्स कर्व, उसमें 4-5 चीजें हैं। ये होता है आपका डिमांड का फंक्शन, ये होता है मार्केट साइज। मार्केट साइज लाइक वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें डी नॉट बताओ, दे विल से व्हाट इज मार्केट साइज, व्हाट इज सेटिएटिंग प्राइस। सो यू शुड नो दीज टर्म्स, नो वन इज गोइंग टू टेल यू गना इट वुड बी दिस वन, यू कैन सी दिस फॉर्मूला रिटन हियर, इट वुड बी दिस वन। क्योंकि आपका ऐसे आएगा log d1 by d2 डिवाइडेड बाय log t2 by t1। क्योंकि आपका एक माइनस का भी साइन होता है, तो आप चेंज भी कर सकते हो, या फिर आप अगेन माइनस बाहर रखोगे तो आप log t1 by t2 को भी फॉर्मूला कर सकते हो। बेसिकली डेरिवेशन ऐसे होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस डेरिवेशन साइड, हाउ दिस डेरिवेशन कम्स आउट। सो दिस इज द मेन थिंग विच यू शुड नो। एंड थोड़ी छोटी छोटी बेसिक चीजें दे विल आस्क, जैसे डिमांड रिस्पॉन्स कर्व की बेसिक सी थ्योरी, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज लेटेंट डिमांड, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, एंड यू नो what are your simple linear regression assumption। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। sometimes they will ask then you have these things, optimal pricing you should know, revenue demand into price से आता है, profit maximization demand into price minus cost into price। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, if you can remember that would be more than enough। primal dual conversion आपको सीखना पड़ेगा कैसे होता है, I mean table is here, what you should know is how to read the sentences। मोस्टली लोगों से कंस्ट्रेंट नहीं बनते हैं, मोस्टली लोग इसी चीज में परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन द सेंस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं होएगा। आप सोचोगे मैंने किसी और के PYQ देख के कर लिया, आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो प्लीज प्राइमल डुअल की प्रैक्टिस खुद से करना। वीक 5 का TA सेशन देख लेना, हाउ टू डू द कन्वर्जन, इस टेबल का कैसे यूज होता है, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट विल कम अगेन। बाकी आपका ये सब वही है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, व्हाट वी डन, एडजस्टेड आर स्क्वायर फॉर्मूला एंड ऑल, ये रिकॉर्डिंग है एक्सेल वाली, एंड एवरीथिंग इज हियर। वीक 8 तक कर लेना। कमिंग बैक टू वीक 9 में, सॉरी वीक 8 वीक 9 व्हाटएवर यू वांट टू से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस वन, व्हाट इज दैट लीनियर प्रोग्रामिंग डूइंग। सो इफ यू सी योर लास्ट टर्म का एंड टर्म का पेपर, दे हैव आस्क्ड समथिंग रिलेटेड टू दैट, व्हिच इज योर somewhere here, you can see this। आपको 4-5 ऑफिस दे दिए, देन दे विल से कि आपने DEA प्रॉब्लम बनाई है लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज करके सेल्स ऑफिस 3 के। सो दे विल आस्क यू कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होएगा, व्हाट आर योर कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आर योर समथिंग लाइक दैट। तो ये कैसे करते हैं, ये सब मैंने TA सेशन में डिस्कस करे हैं। एंड के 4 वीक्स में ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं, बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे ये आपको ग्राफ दे दिया, उन्होंने पूछा हुआ है इसका एफिशिएंसी फ्रंटियर कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि ये इनपुट्स की बात हो रही है। इनपुट्स के केस में आपका जो एफिशिएंसी फ्रंटियर होता है वो ओरिजिन के नियर होता है, अवे होता है। कैन एनीवन टेल मी एफिशिएंसी फ्रंटियर इन केस ऑफ 2 इनपुट्स, इज इट नियर और अवे टू द ओरिजिन?
near. We have to minimize the inputs. करेक्ट. सो आपका एक पॉइंट आ जाएगा 1, एक पॉइंट आ जाएगा 5 और बीच में आपका 3 पड़ रहा है. सो दैट इज वाई आपका जो एफिशिएंसी फ्रंटियर बनेगा वो 1 से 3 और 3 से 5 जाएगा. दीज आर दी एफिशिएंट वंस. 2 एंड 4 जो है वो नॉन एफिशिएंट टाइम. लेकिन अगर ये होता था लेट्स से आउटपुट वाला केस तो आपका अपोजिट बन जाता. आपका 1 आता, फिर 2 आता, फिर 4 आता, फिर आई थिंक 5 भी आता है. तो दिस वुड हैव बीन द केस. तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए लास्ट के 4 वीक्स में. बाकी अगर आप देखो इसमें ऐसा कुछ था नहीं. मतलब बहुत हाँ सॉल्व करने में टाइम लग सकता है लेकिन देयर इज नथिंग व्हिच यू शुड बी वरीड ऑफ. सो आई थिंक समवन सेंट दिस क्वेश्चन ओनली एंड which part did he send this one for hypothesis testing. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बता रखा है this thing which I was saying. Difficulty level splits the probability space in equal area. So इस वजह से इसका आंसर 4 बनेगा ना कि 2 एंड उन्होंने अपडेट करा होगा. So this is the thing which you should know. And coming back to here again Milo survey वाला question it is again कितना cost है, day time, evening time सब कुछ उन्होंने यहाँ लिख रखा है. ये सब लिखा हुआ है. So this is what people should know. कैसे क्या आएगा. तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था the client contract called for MSS to conduct 1000 interview. तो ये equal to वाली कंडीशन थी एंड लोगों को ये नहीं पता होती equal to की कंडीशन को how do we break. So please remember जब भी आपके पास कोई कंडीशन आएगी equal to वाली that breaks down into 2 things. One less than equal to and one greater than equal to. कैसे करते हैं अगेन टीए सेशन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, उनको देख लेना. एक क्वेश्चन हम लोग नेव बायस का भी कर लेते हैं. दिस वन आई थिंक वी डिड दिस वन बट लेट्स डू दिस वन. नेव बायस के लिए मैंने टीए सेशन में एक इजी ट्रिक बताई थी लाइक हाउ टू फॉर्मुलेट द मैथ्स पार्ट. सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल राइट. वन मोर. Is it? Okay. So we will do this. Can anyone tell me what is the question going to ask? And for people who are asking short notes and all stuff, it is in the pinned link. So please check the pinned link. You have every resource there. Corrections सारे के सारे सब कुछ उसी में है. That is more than enough. So please tell me how we will solve this question. Though factory A and B each produce radio, factory A is defective with so and so, B is defective with so and so. You have purchased radio from you purchased 2 radios that were produced by same factory, which is equally likely to have been either factory A or B. In first radio, you check if the first radio that you check is defective, what is the conditional probability that second radio is also defective? So tell me how will we approach this question? Okay, I'll try. If factory A, we know that it is defective by 0.05, and factory B, we know it's 0.1, and we Okay. have like a 50% probability that it may be from factory A or B. Now, the first one which we have is defective. We know this, so we can say that the probability, the conditional probability that the first one is the second one is defective. Given the first one is defective, is the probability that like the so Okay, you are on right track, kind of. Okay, so I'll so tell you. जो भी नेव बेस के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बोला जाएगा कि कुछ हो चुका है. That something has happened. So always remember you write probability, one big danda bar, and then whatever has happened is coming in this part. Stats 2 में you would have learned this thing. We say probability of something given this part has happened. This is how we read. So here what has been happened, first radio that you picked is defective. That means D1 equals to defective. We know this thing, right? So अभी हम बस ऐसे लिख रहे हैं D1 है. What are we asking यहाँ? What have they asked? What is the conditional probability that second radio is also defective? यानी कि D2. So इसको हम ऐसे रीड करें probability that D2 is defective given probability D1 is defective. This is what they have asked, right? Question में यही पूछा ना everyone? Any doubt in this one? the probability that D2 is defective given that D1 is defective.
करेक्ट। तो नाउ टेल मी इसको हम कैसे लिखेंगे? इफ यू रिमेंबर स्टैट्स 2 बेसिक उससे भी हो जाना चाहिए। दिस इज जस्ट Probability that both are defective into वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 एंड D1, और बस इतना ही आएगा या फिर कुछ और भी रहेगा? till the This comes probability in that denominator. Correct. Correct. So you need to find this one. इसको निकालना पड़ेगा. So how do we find this one? Probability D2 is defective and D1 is defective. You have this thing here. This is not exactly even naive bias, to be honest. This is law of total probability. So how do you find this one? Probability that D2, D1 and D2 both. these are independent, right? So Correct. we can just multiply as somebody in the comment is saying. Correct. Multiply. So basically, law of total probability. This would be, if we write this one, probability of D2 and D1. That would be probability D2 given we are choosing from factory A, probability of D1 given factory A into probability of A. Similarly, we'll go for B, probability D2 given B, probability D1 given B, probability of B, this thing. Or I think this would come around, let me show you. This is the thing, and we can do this like ऊपर लिखा होगा, दोनों की probability fail होने की बराबर थी, right? So you have this one. If you read this one, it says probability of each radial Probability of product. there being of the product belonging to a specific factory, that is equal. That is equal, correct. And उसमें जो fail होने की probability, this is 0.05, sorry. तो ये हो गया आपका 0.05. This one is also 0.05. This one would be 0.5. Probability of B भी 0.5 हो जाएगा. What will be this two? If you read here, it is saying B में defective होने की probability 0.1. So this is 0.1. This is also 0.1. You just multiply all this stuff, you get this answer. 0.5 into 0.5 into, sorry, 0.05 into 0.05 into 0.5 plus 0.5 into 0.1 into 0.1. इन सबको सम करोगे, put that thing in numerator, और डिनोमिनेटर में आएगा probability of D1 being defective. D1 कब defective होएगा? What is that? What is probability of D1 being defective? Which D1? Probability of D1 भी तो denominator के लिए. So how do we get that? Now we have to calculate because we only have defective probabilities for the specific factories, so we'll have to calculate it in a similar way. It's done the same way. जैसे हमने D1 and D2 का वो निकाला है, like that thing. Yeah, right. So D1 में भी D1 from में वो defective हो गया, D1 from भी वो defective हो गया. So do that stuff, and you will get something like that, and then you go ahead. So understanding the question, like read करके understand करना is the biggest part which people do not understand, and that is where they get the problem. So if you have anything to say, then let me know. मेरे तरफ से I have done most of the important stuff which can come and all that stuff, and important points का भी revision करा दिया. All the questions, most of the PYQs and all are already solved in your TA sessions, so please watch them. पहले TA session देख लो, फिर solve करने बैठो. Maybe that can help you. और करेक्शंस भी आपके साथ हैं सारे के सारे. तो अगर आपको कोई ईयर सॉल्व करते हुए लग रहा है गलत आंसर है या नहीं मैच कर रहा है, तो प्लीज करेक्शंस ओपन करके उसको साइड बाय साइड यू कैन सॉल्व. दैट वुड बी अ इजियर अप्रोच. So anyone, any doubt or something they want to ask? Any question? This recording will be shared, no? What do I say? Someone yeah, said, it will don't be worry. shared. So, okay, I'm closing the session because I've done most of the important stuff. Question practice, mostly we did, like some PYQs and all.
So please make sure you practice PYQs. And if someone is having any issue, first step should be searching on discourse, then go on the correction post. आपको correction post या discourse में मिल जाएगा because सारे question अब तक solve हो चुके हैं. ऐसा कोई question नहीं जो discourse पे नहीं हो. या तो बहुत easy होएगा, किसी ने नहीं पूछा है, so you need to cross check yourself कि आप क्या कर रहे हो. Else most of the questions are there on discourse. So please एक बार instead of just randomly posting कि इसका solution बता दो, first of all solution directly won't be shared by us. So you need to either share your calculation, then we will do the effort कि हाँ उसने भी कुछ काम करा है, we will share. And else if you think directly you can come and ask for the solution दे दो, it's not happening. I'm so sorry. So please, if you feel there is any doubt or something like that, you can message on discourse. You can create a post. You can message on discourse. You have all the material with you, and I wish you all best of luck. Okay, that's it from my side.